you. This is Latika Shami from Press Legend 24.online. I welcome all my viewers. I'm here at the felicitation program for Aishwarya Verma, Miss Maharashtra 2024, and let's see what are the programs all about. You'll get to know. Be with us, like a channel, subscribe, press the bell icon. With cameraman Vivek, I'm Latika Shami. Thank you so much. Latika Shami from Press Legend 24.online. I welcome all my viewers. Today is an important day when it comes to 16th of March 2025. It's about Aishwarya Verma, an assistant professor at St. Vincent Pallotti College of Engineering and Technology, Nagpur, has won the second runner-up title in the prestigious Miss Forever Star India Maharashtra 2024 competition. The event was organized by Forever Star India Awards, that is FSIA, took place at Zee Studios, Jaipur. Aishwarya emerged victorious after a rigorous competition that included 73 participants, among them an international winner from Australia. The selection process spanned 7 months of online training and elimination rounds, culminating in the final stage. Sharing her thoughts, Aishwarya said, "My passion lies in the art of teaching, where I find immense joy in inspiring and helping others. Being the reason for someone's happiness is what drives me. I always have a strong inclination towards participating in pageants, showcasing my talents in singing, dancing, writing, cooking, and various forms of art that bring happiness to my soul." And indeed, she had credited her success to her family, her college, K.C. Bajaj Pallotti College, and mentors like anchor Alok sir in the previous statements given to the media. Aishwarya is no stranger to the pageant world, holding multiple titles including winner of Miss Maharashtra Fashion Icon Nagpur, Miss Talented, first runner-up for Miss Divine Face of India, first runner-up for Miss Global India Season 3 2023, Miss Nagpur 2024 Forever Star India. In this regard, the program of felicitation was organized at MLA Hostel, that is also known as Amdar Devas, today on 16th of March 2025, with the special chief guests were given all the achievements, and also she had given statement that she will be very happy and obliged that all the chief guests that appeared here, they came here for her. Even the chief guest, Bhosle sir, was also available in this regard, with other chief guests for whom Aishwarya given thanks, with all the family members including her mother and father and everyone, all our friends, college mates, teachers, college staff, etc. She is really happy for this felicitation done in this regard, and she is very happy again to give her all regards, all thanks to her family member for giving her space to work, to study, to explore, and she'll be very happy to leave as Miss India in the coming years if she'll get an opportunity. With the team of Press Legend, with the editor-in-chief Latika Shami, she had given her interview. Let's see her report accordingly with all the felicitation programs. Indeed, with special thanks from Latika Shami. Like our channel, subscribe, press the bell icon. Press Legend 24.online. Thank you so much. बट ऐश्वर्या एफर्टलेसली सब कुछ कर लेती है, एक टाइम में वो बहुत सारी चीजें कर लेती है। आप लोगों ने भी देखा होगा She will connect with diverse individuals, participate in charitable initiatives, and contribute to the empowerment of women across the nation. Aishwarya, by serving as an assistant professor, she has the opportunity to influence and educate others, spreading the idea that true beauty is about much more than appearance.
focus on confidence as the ultimate form of beauty aligns perfectly with her goals of whether it inspiring is and excelling supporting at others. her It's workplace wonderful to see or someone bless you using their always, and platform I and wish you skills all to the best foster for your a more future inclusive and confident society. Her Thank you dedication all to for this mission can listening. truly make a lasting difference in the lives of those she reaches. Becoming Miss Nagpur 2024 is a बहुत ही significant milestone in Aishwarya's life, अच्छी बातें placing की her at the forefront of the बहुत country's modeling and beauty industry. हर किसी ने As कनेक्ट the किया reigning Miss Nagpur, she now has और the मैं opportunity आपको to फ्यूचर represent her city on various बढ़ाते हुए platforms, हमारे advocate for important हमारी causes, and make a positive gifting impact on partner, society. In this Miss prestigious event, models from various cities across the country were crowned in different मिसेस categories. सरला पांडे मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज Group Aishwarya Verma emerged victorious as the Forever Miss Nagpur City winner 2024. Forever Star India organized the Grand Beauty Pageant Forever और मैं टीम से रिक्वेस्ट and करूंगा Miss कि वो Teen प्लीज India 2024 City crowning Momentum on लेंगे। September 6th to 8, 2024. इनके बाद The 2024 edition of Miss स्टेज पर and बुलाना Mrs. चाहूंगा and Miss Teen Mrs. India marks the पांडे fourth से। season, where So, selected sir, models please from across the come country on the stage. participate and empower themselves. मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां होनी has चाहिए reached सर और by मैम setting a world record for the maximum Thank you so numbers much. of crowning ceremonies over the past 3 years. So, after talking to press legend team, when asked that are you थैंक यू सो मच someone like Aishwarya Rai, so she denies and she बुलाना says that चाहिए I am Aishwarya Verma. खूबसूरत नाम So, जिनका हाथ रहा है इस like a channel, subscribe the bell icon. With Latika Shani, thank you so much. Aishwarya Verma had given invitation as a chief guest to press legend 24.online, editor-in-chief Latika Shami, to attend the felicitation program. And in this regard, और as a chief guest, और इसके I बाद am very thankful to Aishwarya Verma and give her all regards and best wishes for her future endeavors. And we will see that in the coming near future she'll be Miss India for the betterment of India, for the betterment of society, for the betterment of Nagpur. So we wish Aishwarya Verma once again best of luck and thank you for inviting as a chief guest to Latika Shami for Press Legend team. Thank you so much. और मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मोमेंटो लाया जाए मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मैम ने अपना कीमती समय हमें दिया थैंक यू सो मच मैम और इसके बाद मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम 2 शब्द Very good evening to everyone. I am Latika Shami, editor-in-chief of Press Legend 24.online. It's my own news channel. After 10 years of experience working in different relevant channels, I have opened this channel 2 months prior. After working for Vidhan Sabha, after working for TNN 24, Daily News 9, Anand Kirti, as well as INN 24. It's a vast experience. While making a documentary for Udaan 8.0, I met Aishwarya. As it was an overwhelming experience having Udaan for 6 o'clock in the evening till 12 o'clock in the evening. It's for the women empowerment, and Udaan has given people, especially women, when it comes to women, the Constitution of India has given rights to everyone to work for humanity. But when it comes to women empowerment, Udaan has given everyone
a platform to work where I met Aishwarya, helping her mother out over there, having a stall in Udaan. When I met her, I said, "How you're feeling working for coming here for Udaan?" She said, "Sun-kissed," and I was not knowing that she was Miss Maharashtra or XYZ. So the name, as Anupam Pandey sir had said, Aishwarya, name always prefer, and it always says that she will attain high altitudes in life. So as an editor-in-chief for Press Legend, I really thank her to invite me in this program, and I wish her all the best for future endeavors, as it is already given by her colleagues, her friends, her companions, as well as sir had already said that she was an elephant. So sir, that was a wonderful. She has proved that yes, if you're even obese, you can attain high altitudes in life. दुबला और मोटा कुछ नहीं होता, बस आपका काम बोलता है और कलम की ताकत से बढ़ के कुछ नहीं. बस इसी बात को बरकरार रखते हुए आप सबका धन्यवाद. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रेशियस वर्ड्स. एंड इसके बाद अब हम हमारा ये जो कार्यक्रम है उसके मिड में पहुंच चुके हैं, क्योंकि मिड के बाद में कुछ और शुरू होने वाला है जो आप सभी लोगों को पता है ना. तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले जो कि हमारे गिफ्टिंग पार्टनर है, और मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मोमेंटो लाया जाए फॉर योर काइंड सपोर्ट. और उनके जो हस्बैंड हैं मिस्टर मुन्ना जी यादव सर. सो सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमें स्टेज पे ज्वाइन करें, और आपका कीमती समय निकालकर यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. साथ ही साथ मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोमेंटो लाया जाए प्लीज़. मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. आज हम यहाँ मिस फॉर स्टार इंडिया, मिस महाराष्ट्र, मिस ऐश्वर्या वर्मा, आज यहाँ पर हम उसके स्वागत के लिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं. उसकी एक ये शानदार उपलब्धि है, उसका जश्न, उसकी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं. ये किताब केवल सुंदरता का ही नहीं बल्कि समर्पण, प्रतिभा और शालीनता का भी प्रतीक है. प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने असाधारण संतुलन, बुद्धिमान और एक सच्ची भावना का प्रदर्शन किया है. ये स्पष्ट है कि उनके पास सुंदरता के साथ साथ बुद्धि भी है और अपने भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण भी है. उनकी प्रतिभा और समर्पण वास्तव में चमक उठे हैं. हम फॉरएवर स्टार इंडिया को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने युवा महिलाओं को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए वहां मंच प्रदान किया. हम उन्हें एक भविष्य के प्रयास के लिए शुभकामनाएं देते हैं, जिसमें राष्ट्रीय मंच की उनकी यात्रा भी शामिल है. ये उपलब्धि उनके जीवन में कई सफलताओं की शुरुआत है. हमें विश्वास है कि यह महाराष्ट्र का गर्व और विशिष्ट के साथ प्रतिनिधित्व करेंगी. यदि संभव हो तो अगर संभव है तो ये मेहनत करे. और आज यहाँ पर मैं उसके माता पिता, उसके शिक्षक, उसको जिन्होंने सपोर्टिंग किया, जिन्होंने इसको मदद किया, उन सभी का अभिनंदन करते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ. धन्यवाद. बाद
आगे हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे डॉक्टर तांबे सर को। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। और मैं चाहूँ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द सुनने को मिले हमें ऐश्वर्या मैम के लिए कि अभी जर्नी जो है वो बाकी है ना। और इसके बाद फेलिसिटेशन के लिए ज़्यादा देर ना करते हुए हमारे बीच मैं हमारे जो अगले गेस्ट हैं उनको बुलाना चाहूँगा, मिस्टर फिरोज आलम सर। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। और मैं टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर के फेलिसिटेशन के लिए प्लीज़ मोमेंट को लाया जाए। थैंक यू सो मच सर, आप अपना टाइम निकाल के हमारे बीच आए और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। कि उन्हें ये मोमेंट और जो जर्नी है ऐश्वर्या मैम की वो कैसी लगी, उनकी मेहनत कैसी लगी, तो सर को मैं बुलाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। At the onset, I thank Verma family for having invited me. I was associated with them when I came and started my practice way back in '92 when I came from my all training and things and started in the same area where they were there. Faced lot of problems and while solving the problem, one problem was solved by the family to that extent that I became carefree. My sisters started staying in their house and they used to provide tiffins and everything, what a social service. I thank both proud parents who are standing there smiling that it's beyond imagination, and I still feel I'm confirmed about it कि what service they have provided not only to my sisters and to my patients, it's one of the real service one can give, and I think Aishwarya has picked up those qualities. Now talking about Aishwarya, particularly Aishwarya, because I've seen her doing that NCC drills, her fat nature. I never thought she can ever do. I used to think, and I used to tell her that you are a fat elephant. While I'm saying this, and I always used to say, you do horse riding, you do all boxing and everything, and not only that, her sense, she has a third sense of analyzing the person. She became an NCC, she learned, and she is one of the biggest qualities which I have seen. I danced with her. In the last New Year's I danced with her. And I can see that transformation from the little kid to what honors you have achieved. And I wish you, this is just the beginning. This is just the beginning. You have to achieve so many things. So मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर सपोर्टिंग अस एंड आपका कीमती समय हमें देने के लिए। और अपना नाम रोशन करेगा, साथ ही साथ अपने पेरेंट्स का रोशन करेगा और उनके साथ टीचर्स का भी नाम रोशन करेगा। सो आई होप मैम कि ऐश्वर्या मैम की ये जो मेहनत है उससे आपको बहुत प्राउड फील होगा, है ना। तो मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूँगा मैम के लिए। थैंक यू सो मच मैम। और हमारे टाइम में तो मैम अलग किस्सा होता था। हम ऐसे स्टूडेंट थे कि घर पे भी पिटते थे, स्कूल में भी पिटते थे। ठीक है, कॉपी कंप्लीट रही तो भी पिटते थे, कॉपी कंप्लीट नहीं रही तो भी पिटते थे। तो बाद में इतने टफ हो गया ना कि जो रियल लाइफ में जो चीज़ें देखने को मिलती है वो अब आम बात लगती है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अब बढ़ाना चाहेंगे कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे। और हमारे बीच If a student excel in any field, it is teacher's achievement also. So it's my achievement as well as Aishwarya's. Thank you so much. Good evening everyone. First of all, I want to congratulate Aishwarya for winning so many titles. एक बार जोरदार तालियां प्लीज। I'm so happy for her. And Aishwarya, in 2019 we were taking
तो करिए। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, और जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो सभी लोग इस शो में आए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोग लिटरली बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, और एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ऐश्वर्या मैम के लिए और उनकी फैमिली के लिए। बारी है और मम्मी और पापा जी की बारी है कि उन्हें ये जो जर्नी है, ये जो मेहनत है ऐश्वर्या मैम की, और ये जो अचीवमेंट है वो कैसा लगा, है ना। तो अब हम सीधे लेके जाएंगे आपको उनके मम्मी और पापा जी की तरफ। ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे पता है कि ये वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो भी 2 शब्द हो जाए, या फिर 2.5 शब्द, या फिर 5-6 शब्द हो जाए, है ना, तो वो प्लीज़ होने चाहिए आज के दिन। हमारी बिटिया की जो मेहनत की सफलता सार्थकता है, ये तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन इसमें जो मेहनत है, तांबे सर ने जो बोली हुई है, यानी जो माँ बाप की मेहनत की सार्थकता है, जो तपस्या का फल है वो ये है। लेकिन मेहनत जो हमारे भाभी की और भाई की है, उसको भी हम उतना ही सेलिब्रेट करना चाहेंगे। और मैं सॉरी सर, मैं आपको बुलाना भूल गया, है ना। एक बार जोरदार तालियां। अब बस मैम ना बोल दे नो कमेंट्स। नहीं मैम, आज आप ब्यूटीफुल मोमेंट को देखिए प्लीज। आप लोग यहाँ पे आए, मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, मुकाम पे पहुँच जाएगी, ये मुझे मालूम ही नहीं था। हेलो, लेकिन आज हाँ हेलो, हाँ बोलिए। क्या जो भी कहना चाहती है वो मेरे थ्रू आपको रिफ्लेक्ट हो जाता है, थ्रू माई जर्नीज, माई अचीवमेंट्स, और उन्हीं की मेहनत है और सारी चीज़ें हैं जो मुझ में रिफ्लेक्ट होती है, जैसे सर ने बखूबी कहा। थैंक यू सो मच। ओके, बस माइक दे दीजिए, मैं उनसे बातें निकलवा लूंगा। आप दे दीजिए। मैंने इसलिए बोला था स्पीचलेस। नहीं सर, मैं चाहूंगा मम्मी जी प्लीज माइक ले लीजिए। ये जो मिस महाराष्ट्र 2024 का टाइटल अचीव किया, वो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और वही तो बोल रही हूँ कि हाँ हमें नहीं मालूम था कि यहाँ तक पहुँचेगी। हाँ, बस कि आप लोगों को कितना अच्छा लगा। और इसके बाद में अब हम हमारा जो कार्यक्रम है इसके आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, तो ज़्यादा देर ना करते हुए जो फैमिली मेंबर्स हैं, जितने भी बहुत ही स्पेशल फ्रेंड, भाई थोड़ा एवरीबॉडी, बस ज़्यादा नहीं 5 मिनट के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे बीच एक और ख़ास शख्सियत जो है वो रह गई है ना, और मैं उनको अब स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, जो कि हमारी ऐश्वर्या मैम की एक बहुत ही करीबी फ्रेंड है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस मालविका माड़कोलकर मैम से दैट प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, और एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए बिकॉज, और साथ में मैं चाहूँगा कि रुचिता मैम और राहुल सर भी ज्वाइन करें प्लीज। राहुल सर प्लीज। अब मैं बताता हूँ, दोस्त है, थोड़ी बेइज्जती करूंगा, चलना चाहिए, ठीक है। तो ऐश्वर्या मैम की, सो ज्यादा देर ना करते हुए मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं वो सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि अब बारी है मिस महाराष्ट्र 2024 की, जिनके मुख से आप लोग शब्द सुनने वाले हैं। ओके, एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए। फायनली त्वमेव माता च पिता त्वमेव
ममैव सर्वं मम देवदेव। ये सिर्फ मम्मी पापा के, मेरे मम्मी पापा के लिए है, क्योंकि मैंने शुरुआत हर जगह मेरे इंट्रोडक्शन में मेरे मम्मी पापा से ही की है। जब आप सबको सुनाना चाहती हूँ, मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो चुकी हूँ। शायद 2 मिनट बाद मैं रो भी दूँ। और उससे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक बार जोरदार तालियां मेरे कॉलेज के स्टाफ के लिए हो जाए, क्योंकि अगर वो मेरा सपोर्ट नहीं करते, अगर हम लोग बहुत कुछ सीखने मिल रहा है मेरे कॉलेज से और वो आए हैं, मुझे सबको देख के बहुत खुशी हो रही है। अब मैं आपको मेरा वो इंट्रोडक्शन सुनाना चाहती हूँ जिसके बलबूते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मम्मी के बसंत की फुलवारी, पापा की हूँ राज दुलारी, कभी करती समाज सेवा, कभी बनती प्रोफेसर प्यारी। प्रोफेसर ऐश्वर्या वर्मा, मिस महाराष्ट्र 2024। कर रखी है घुड़सवारी, फ्रेंच सीखना भी है जारी। पढ़ती हूँ इंग्लिश लिटरेचर मगर साइकोलॉजी। A very good evening to you. This is Latika Shami from Press Legend 24.online. I welcome all my viewers. As I already said that Nagpur is Nagpur, and when it comes to Nagpur, we have Aishwarya Verma. Why I am saying this, that when it comes to women empowerment, when it comes to women, we have a woman who will leading Nagpur in a very coming years. Aishwarya Verma, we welcome you at Press Legend 24.online. I am not here with my apparatus, I don't have my group with me, but I am here as a chief guest. But as a chief guest, the things doesn't stop me when it comes to journalism. I am a journalist too, so I welcome all my viewers. Aishwarya, when it comes to becoming a Miss Forever, or you can say Miss Nagpur for us, but it comes to Maharashtra, what had given you an impact to work for modeling as you are a professor? You know, my subscribers should know that you can, as a woman, work simultaneously for different sectors. Aishwarya Verma, please tell us your journey when it comes to Miss Maharashtra. All right, thank you so much for giving me this opportunity now. Yeah. I would just like to say in very short that when you think for something, when something is your passion, it should go parallel to your profession. It should not be like if we have passion, we have to take our profession. I just want to quickly go that both the things can move together. Just as I have given an example, and I wish Touchwood that I will continue this. Yes. And I want to inspire every woman, not just those who are here, but to those, like if I switch my language to Hindi, I would like to say कि एक नींबू बेचने वाली औरत वो मुझे इंस्पायर करती है, क्योंकि मैं उसको 5 रुपए देती हूँ तो भी मुझे 1 रुपए वापस करके 2 रुपए के 2 नींबू ले लेके भागती हूँ, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको है पैसे, राइट? वैसे ही जो आप पानी पूरी के ठेले पे जाते हो, राइट? रिसेंटली मेरा इंसिडेंट हुआ था, आई जस्ट गॉट दिस कि भैया अगर 20 रुपए की पूरी खिला देते हैं ना उनको एक्स्ट्रा, वो खुशी जो हमारे चेहरे पे आती है भैया को वो अच्छा लगता है, और वो मुझे इंस्पायर करती है कि जेब में कुछ नहीं है लेकिन खुशियाँ बांटने के लिए जज्बा है। तो ये चाहती हूँ मैं कि ये हम सभी में रहे, क्योंकि ये लोग हैं वो जो पर्दे के पीछे होकर काम करते हैं, और मेरे मम्मी पापा भी उसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। बिकॉज कोविड के वक्त हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट्स को, बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल सकता था, उनको भी खाना पहुँचाया है, और मुझे जिससे ही इंस्पिरेशन मिली कि जब वो इस लेवल पे ये चीज़ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। आपने जैसे कहा कि अपने माँ बाप से के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ऐश्वर्या वर्मा ने अपने माता पिता को इसका पूरा धन्यवाद किया, साथ ही कॉलेज को, साथ ही फ्रेंड्स को, साथ ही जितने सहपाठी है सबको आज शुक्रिया किया। लेकिन आपको लगता है ऐश्वर्या राय की वजह से भी कहीं ना कहीं आपके नाम में इम्पैक्ट आया है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा मैम आपने। इसका जवाब मैं ये दूँगी कि आपने क्लासमेट की ऐड देखी है कि वन ऑफ अ काइंड, तो तब से ही इंस्पिरेशन आ गया। सब मुझे चेहरे से देख के मैंने अपना नाम बोल दिया ऐश्वर्या राय, मैं कहती हूँ नो, आई एम नॉट ऐश्वर्या राय, आई एम द फर्स्ट ऐश्वर्या वर्मा। Yes. So as you've seen that Aishwarya Verma is leading India very soon, and this is a channel, Press Legend, who is trying to make women in a such a way that see we are here for the women rights, लेकिन मैं मर्दों के rights के लिए भी काम कर रही हूँ, right? तो इसी बात को बरकरार रखते हुए मैं ये चाहती हूँ प्रशासन and Honorable Nitin Gadkari sir, I earnestly request you that, and even the Chief Minister of Maharashtra Devendra Fadnavis sir, that
please give this kind of platforms to the women as well as men, especially when it comes to India. We have to lead to different sectors and different organizations in the coming leading years. Aishwarya Verma ma'am, one more thing, but my question is, when it comes to, you are a professor simultaneously taking care of modeling, क्या आप ये प्रोफेशन को छोड़ के मॉडलिंग का अगर ये आगे आपको मिस इंडिया बनिया, क्या आप अपना पढ़ाना छोड़ देंगी? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि 12th से मैंने ये चीज़ अपने अंदर लाई है कि और मेरे पेरेंट्स ने किया है कि मैं घर से बाहर निकल गई, मैंने कमाने के साथ साथ पढ़ाई की और फिर वो मेरा जुनून बन गया जी। तो मैं ये बोलूँगी कि आप सब कुछ करिए, बस पढ़ाई मत छोड़िए। कि जैसे यहाँ पे खड़े किसी शख्स ने कहा था कि कलम से बढ़कर कुछ नहीं होता, तो कलम आपको वो पावर देती है कि आप इतने सब लोगों के आगे खड़े हो सम्मान के साथ। Yes. So, as Indira Gandhi ma'am has already stated that education is the key to success, as well as the leading Prime Minister of India, Mrs. Indira Gandhi, but she is no more. But yes, उन्होंने हमें कहा कि हमें पढ़ना चाहिए, और मैं ऑनरेबल B.R. अम्बेडकर साहब को भी इस वक्त याद करूँगी, और उन्होंने भी हमें सिखाया कि कलम की ताकत से बढ़ी कोई ताकत नहीं। तो इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। विद कैमरामैन विवेक, आई एम लतिका शामी, एडिटर इन चीफ ऑफ प्रेस लेजेंड विद ऐश्वर्या वर्मा। थैंक यू सो मच। नमस्कार। और जो हमारे गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं, तो ये इवेंट जो मैनेज किया गया है वो किया गया है फ्रेंड्स क्लब इवेंट्स की तरफ से, एंड हमारे इस शो के गिफ्टिंग पार्टनर हैं सारंगी फैब, दैट इज सारंगी फैब्रिकेशन। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मैं जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे अब रिक्वेस्ट करूंगा फॉर द ग्रुप फोटो, एंड मैं चाहूँगा हमारी जो मैम है ऐश्वर्या मैम, इनके जो मौसी एंड मौसा जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमें स्टेज पे ज्वाइन करें फॉर द फेलिसिटेशन। मौसी एंड मौसा जी प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। मौसी जी या तो इमोशनल हो गई हैं या तो फिर इनको नींद आ रही है। तो मैं चाहूँगा मौसी जी और मौसा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, और इनके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मोमेंटो लाया जाए। सो मच फॉर योर प्रेशियस वर्ड्स। हम आपको दुआएं देंगे कि आप और आगे जाएं, ऐसे ही और नाम रोशन करें नागपुर का, अजनी का, महाराष्ट्र का, और आगे चल के इंडिया का। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मैम के लिए। और इसके बाद अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका सभी लोगों को इंतज़ार था, है ना। और अब से कुछ ही देर के बाद में बाहर फूड शुरू हो चुका है। तो जो लोग हमारे जो गेस्ट हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि अगर आप लोग फूड लेना चाहते हैं तो आप लोग बाहर डिनर ले सकते हैं। बट उसके पहले हमारे बीच एक हमारे डिग्निटरी हैं जो आए हुए हैं, आई थिंक दीपक सर। सो मैं दीपक सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर प्लीज़ स्टेज पर आ जाइए, और मैं फेलिसिटेशन के लिए मेरी टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मोमेंटो लाया जाए। म्यूजिक प्लीज़। एंड हाँ, मैं भूल गया, ऑडियंस को 2 मिनट रुकना है। लास्ट में मेरी भी 2 लाइनें हैं, वो सुन के जाना है खाना खाने। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। थैंक यू सो मच सर। सो इसके बाद मैं आप लोग को एट द एंड बताना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने ये प्रोग्राम जो है फेलिसिटेशन सेरेमनी ऑफ मिस महाराष्ट्र 2024 विनर प्रोफेसर ऐश्वर्या वर्मा का ये जो प्यारा सा मोमेंट है, इवेंट है, वो आप लोगों ने आकर इसकी गरिमा बढ़ाई। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आप लोग के लिए। और कोई भी जो शो होता है वो बिना ऑडियंस के इनकम्प्लीट होता है। सो आप लोग आए, आपने अपना टाइम दिया। अब वो 2 लाइनें है ना जिस की बारी आ चुकी है, तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग ध्यान, और मेरी टीम के लिए आ जाओ।
सो ही इज़ माई बिग ब्रदर, जिन्होंने मुझे ये आइडिया दिया और आगे बढ़ने की सलाह दी दैट यू कैन फॉर्म अ कंपनी। और मैंने ये सोच को थोड़ा सा टीम फॉर्म कर सकता हूँ। मैं मेरे उस बड़े भाई को बुलाना चाहूँगा। सो नीतीश भैया प्लीज कम ऑन द स्टेज, जो कि हमारे फ्रेंड्स क्लब इवेंट्स की टीम है। और इस फ्रेंड्स क्लब इवेंट जल्दी से आ जाइए, मैंने कहा था बुके रेडी रखिए। थैंक यू। तो वो और इसके बाद में ऐश्वर्या मैम, सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपनी जगह पर चले जाएं, ठीक है। माना आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार पोडियम पे आइए। पोडियम पे वही आता है जिसको ये जिम्मेदारी मिली हुई है, ठीक है। तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। और अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर पहुँच चुके हैं। बट प्लीज दोस्तों, जिंदगी में मिलने की फरियाद करते रहना, और अगर ना मिल सके तो कम से कम याद करते रहना। सो दिस इज एंकर आलोक साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। और इसी बात में मैं चाहूँगी आलोक सर आप स्टेज पे रुकिए, फटाक से पापा मम्मा पढ़ने पर चाहे हो या ना हो पहचान, अदाएं भी करती हैं बातें, ये रखते हैं पैर होकर अनजान। रह चुकी हूँ स्कूल की कप्तान, पाई है एनसीसी ऑफिसर की शान। बैडमिंटन में हासिल है नेशनल का मुकाम, और अब बस है मिस वर्ल्ड बनने का अरमान। मगर फिर भी एक ही है ध्यान, जितना भी पाया इस मातृभूमि से, ज्यादा उससे लौटाने की है मेरी आन। बरकरार रहे इस देश का सम्मान, जिसके लिए तत्पर है ऐश्वर्या वर्मा की जान। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आज के डेट में अगर हम ऐसे फील्ड्स की बात करें, तो मैं ये बोलूँगी कि काफ़ी अंडररेटेड हो चुके हैं, या फिर इतना तवज्जो नहीं मिलता जितना हम मेहनत करते हैं। तो उसके लिए मैं बस यही बोलूँगी कि आज जो हम वुमेन एम्पावरमेंट इस शब्द का यूज़ करते हैं, मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि जब ये जो शब्द है वुमेन एम्पावरमेंट, इसकी ज़रूरत ना पड़े, तब सही मायने में हमारा देश महिला सशक्तिकरण के लिए माना जाए। जब उस शब्द की ज़रूरत ही ना पड़े, हम ऐसे सब इक्वली सबको ट्रीट करें। और इसका सिंपल सोल्यूशन है, मैं ये नहीं बोलती कि आप उनकी बहुत इज्जत करें और जहाँ वो गलत है वहाँ पर भी उनको सपोर्ट करें। मेरा ये कहने का मतलब है कि सिर्फ अपना दिल बड़ा करें। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम 4 बहनें हैं, और जिनने भी जब ये सुना है तब उनका एक्सप्रेशन है 4 बहनें हो तुम लोग, भाई नहीं है। तब मेरा यही जवाब होता है सबको कि मैं ही मेरे घर का बेटा हूँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये समझाना चाहती हूँ पूरे समाज को कि वुमेन एम्पावरमेंट मतलब आप अपना दिल बड़ा कीजिए, सब हो जाएगा। सबको वेलकम करना सीखिए, चाहे वो कैसे भी हो। आज की डेट में मैं करोड़पति नहीं हूँ या लखपति भी नहीं हूँ जहाँ तक मैं बोल सकूँ, लेकिन मैंने सबसे बड़ी जो दौलत कमाई है वो है मेरे माँ बाप का प्यार, और उन्होंने जो कमाया है वो उनकी और हमारी इज्जत इस समाज में। ये मैं बहुत दिल से बोल रही हूँ, मेरे पास आज कोई पर्चा नहीं है, मैं जो भी बोल रही हूँ दिल से बोल रही हूँ। इसके अलावा बस 2 चीज़ें और बोलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप सबको बहुत भूख लग गई होगी और तब से आप मेरे लिए तालियां बजा के थक गए होंगे। हो गया ना मिस महाराष्ट्र, और कितना। बस 2 बातें और बोलना चाहूँगी। यूट्यूब पे आप सब वीडियोस देखते हैं, ऐसे ही 2 वीडियोस मैंने भी देखी जिनका मैं जिक्र करना चाहती हूँ। एक मैंने स्मृति ईरानी मैम का वीडियो देखा, जिसमें वो कहती हैं कि वुमेन, मैंने जाना कि नारी शक्ति होता क्या है। तो उन्होंने ये कहा उस इंटरव्यू में कि मैंने एक राजस्थान की स्टोरी सुनी उस महिला से कि आपके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई या फिर इतना जज्बा कहाँ से आया। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे घर पे जब लड़की पैदा होती है तो उसको मार डालते हैं, नहीं जीने देते। तो मैंने ये किया कि
मैं घर पे आई, मतलब जब मुझे बेटी हुई तब हॉस्पिटल में मेरा भाई आके मुझे बोल के गया कि इसको घर पे लाना या तो फिर घर से निकल जाना, अगर इसको घर में लाओगे तो आप घर से निकल जाओगे। ठीक, तो वो गई बेटी को लेके घर और आंगन में छोड़ दिया। आंगन में छोड़ दिया, सुबह का वक्त था, शाम होते होते उनकी नींद लग गई थी और वो नीली पड़ गई थी पूरी। पर जब वो देखने गई, जब उनकी नींद खुली, तब वो तभी भी जिंदा थी, कि सांसें तो चल रही थी पर पूरा शरीर नीला था। तब उन्होंने ठान लिया कि अब मैं इस बेटी को पालूंगी, मैं ये घर छोड़ दूंगी और मैं अपने बलबूते इस बेटी को पालूंगी। तो वहाँ से जो मुझे वो वीडियो देख के जो स्ट्राइक हुआ ना कि क्यों हम ऐसे समाज में बदलाव नहीं ला सकते। हमारी सोच तो है, लेकिन सिर्फ हमारी सोच तक सीमित नहीं होनी चाहिए हमारी सोच। ये हमें शेयर भी करना है आगे और दूसरों की भी सोच को बदलना है। तब से फिर उन्होंने ठान लिया कि मैं, अगर ये बेटी जीवन से लड़ सकती है एक दिन की होकर, तो मैं समाज से क्यों नहीं लड़ सकती। ये वीडियो मुझे बहुत इंस्पायर कर गया था, जो मैंने इसको बहुत ही दिल से ले लिया। फिर मैं बहुत इमोशनल हूँ, जैसे ममता मैम भी बोलती है मुझे कॉलेज में। और दूसरा वीडियो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि जो मैंने देखा और मुझे इंस्पायर किया बहुत ज़्यादा, वो ये था कि जिस तरीके से आज आप सब शामिल हैं, तो सबको ये लग रहा होगा कि ये कुछ अलग है, ये अपना ही सेलिब्रेशन अपनों में और इतने धूमधाम से, ये कैसे? क्योंकि हर बार तो ऐसा होता है कि किसी और ने इनवाइट किया है और उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और हम जाते हैं वहाँ पे, राइट? बट ये तो मेरा शो है, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन और हमारी टीम का ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें मेरे सारे अपने ही लोग हैं, तो ऐसा क्या है? तो इसका इंस्पिरेशन मुझे एक वीडियो से मिला जिसमें वो शेयर करते हैं कि मेरा फेवरेट फादर कौन है। एक बार एक बच्चा 10वीं में फेल हो जाता है, तो उसके पापा पार्टी करते हैं, सबको बुलाते हैं, घर पे पार्टी रखते हैं। ये नहीं बोलते कि वो पास हो गया, वो ये बोलते हैं, या वो फेल हो गया, वो ये बोलते हैं कि मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत की, वो नहीं आ पाया इस बार, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अगली बार ज़रूर पास होकर दिखाएगा। तो ये जो ट्राई का जो मैं बोलती हूँ महत्व है, इम्पोर्टेंस है, ये है वो चीज़ जो सभी पेरेंट्स में होनी चाहिए। और मैं गर्व से कहती हूँ कि हमारे भारतीय समाज के जो पेरेंट्स हैं, उन सब में मैं ये देखती हूँ कि अपना बच्चा जैसा भी हो बहुत प्यारा है। तो मेरे माँ बाप ने भी मुझे कभी नहीं रोका कि तू जो कर रही है वो मत कर, हर चीज़ करने दी। उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा और इसीलिए शायद मैं कह सकती हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मम्मी पापा, आई लव यू एंड थैंक यू सो मच। और ये जो पार्टी है, मैं कनेक्ट कर देती हूँ उस वीडियो को इससे कि उन्होंने बोला कि चलो अब सब बोल रहे हैं पार्टी, मिस महाराष्ट्र पेपर में भी आ गए, तो एक कर ही देते हैं पार्टी। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा, सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो आज ये जो समारोह है वो उनको डेडिकेट करती हूँ मैं, और उनके लिए ये सारा चीज़ थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाके मैंने किया विद द हेल्प ऑफ कोर्स पांडे सर एंड एंकर आलोक। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने डे 1 से बहुत सपोर्ट किया मुझे और ये हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां बनती है। बिल्कुल, थैंक यू। So at the end, Aishwarya Verma had given thanks to her family members, to mother and father, saying I love you mummy papa, and given thanks to Advocate Anupam Pandey and Alok sir for being there for her from the very initial stage. From the first day they were supporting her. So this is all for now with Latika Shami. Thank you so much.